اور اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے جہاں پر وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کرنے جا رہے ہیں۔ اکانومی کی جنرل سچویشن ہے اس کے بارے میں بھی اور ان لاز کے بارے میں بھی کوئی کوشچن اینڈ آنسرز ہوں تو بول دیں۔ آج بنیادی طور پر 3 بڑے قوانین کے لیے کابینہ نے اپروول دی اور ان تینوں کا مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر جو ہمارے ادارے ہیں ان کو کس انداز میں مضبوط کیا جائے اور کس انداز میں پاکستان میں معیشت کو مستحکم کیا جائے اور آگے آنے والے دنوں کے لیے ایک اچھی فاؤنڈیشن جو ہے بنیاد جو ہے وہ بنائی جائے۔ تو پہلا جو قانون تھا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے مزید اٹانومی کا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پہل ہم ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ طے کریں اور یہ مینڈیٹ دنیا میں عموماً جو اسٹیٹ بینک کا ہوتا ہے یا مرکزی بینک جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے پرائس کنٹرول یا فائٹنگ انفلیشن۔ تو یہاں پر بھی یہ مرکزی جو ان کا آبجیکٹو ہوگا وہ یہی ہوگا، ٹو کنٹرول انفلیشن، ٹو فائٹ دی انکریز ان پرائسز، جس طرح دنیا کے دوسرے ممالک میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو ایکسچینج ریٹ اور مانیٹری پالیسی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کریں گے اور آزادانہ ایک ماحول میں کریں گے وداؤٹ انٹرونشن فرام دی گورنمنٹ۔ تیسری چیز یہ کہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس کے ٹرم میں بھی 5 سال کا اضافہ ہوگا، تو ایک سیکیورٹی آف ٹینیور جو ہے گورنر صاحب کو جو بھی ہو اسے ملے گی۔ پھر حکومت جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے بورو کرنا یا گارنٹیز لینا جو ماضی میں ایک بہت میرے خیال میں اس چیز کا برے انداز میں استعمال بھی ہوا ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ذرائع سے اور اپنی ایفرٹ سے اور کمرشل مارکیٹس کے تھرو اپنی فائنینسنگ کرے۔ چوتھی چیز یہی ہے کہ جو ایک مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن بورڈ رہا ہے اسے بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی بجائے حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ خصوصی کمیٹیز بنا کر کوآرڈینیشن کرے۔ اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اکاؤنٹیبل بھی کیا جا رہا ہے۔ اب اس ساری چیز کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جو اہم اقتصادی ادارے ہیں ان کو مضبوط بنائیں اور ان کو 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق ان کو ایک حیثیت بھی دیں اور ان کی کیپیسٹی بھی دیں اور ان کو اٹانومی بھی دیں۔ دوسرا جو قانون بنا ہے وہ پاکستان کے جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز یعنی جو حکومتی ادارے ہیں خصوصی طور پہ جو بزنس کی ایکٹیویٹی میں انگیجڈ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مختلف ادارے یا مختلف کمپنیز کئی انداز سے چل رہے ہیں، کسی کے اپنے قوانین ہیں، کوئی اسٹیٹ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے انڈر ہیں، کوئی اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہیں، کوئی ڈائریکٹلی منسٹریز کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک ہچ پچ والا نظام ہے اور کوشش یہ کی جا رہی کہ اس قانون کے تحت ان کو ایک مرکزی انداز میں چلایا جائے اور منسٹریوں کا جو بہت زیادہ انٹرونشنسٹ رول ہے اس کو کم کیا جائے اور منسٹریز کے بجائے اس کو فل گورنمنٹ کے ماتحت کیا جائے اور منسٹریز کا رول اس کے انڈر سبسیوم کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو ان کے بورڈ اور اس کا چیئرمین ہے یہ بھی حکومت کرے گی اپوائنٹ ایک ٹرانسپیرنٹ انداز میں، جس میں کمیٹیز بنائی جائیں گی جو یہ سلسلہ جو ہے ایک شفاف اور پروفیشنل انداز میں کرے گی، اور جو سی ای اوز ہوں گے ان کمپنیز کے یعنی چیف ایگزیکٹو وہ یہ بورڈز جو ہیں وہ اپوائنٹ کریں گے بجائے اس کے کہ منسٹر صاحبان اور سیکرٹری صاحبان بیٹھے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔
ताकि प्रोफेशनलिज्म हो और यहाँ पर भी अदारों को एक जो मॉडर्न तकाज़े हैं उनकी बुनियाद पे चलाया जाए और उनको सिक्योरिटी हो। ये कहीं दुनिया में कोई इदारे जो हैं वो इस तरह से इतने बड़े एसेट बेस पर और इतने बड़े रेवेन्यू पर ये लॉसेस में नहीं जाने चाहिए। तो इसकी तरफ तवज्जो देने के लिए ये कानून बना है। इसमें 3 जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स हमने अडॉप्ट किए हैं। एक तो ये होगा कि इनके साथ हमारे परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि आपने साल में ये करना है और आपने ये अचीव करना है और ये आपके KPIs और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे और उसके बेसिस पे उनकी इवैल्यूएशन होगी। सेकंड, जो इस वक्त घिचमिच है, जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि कहीं पर चेयरमैन जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, कहीं चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं है, तो उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट को हमने अलग कर दिया है। गवर्नेंस जो होगा वो इंडिपेंडेंट बोर्ड करेगा और मैनेजमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा अलॉन्ग विद द CFO, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर, और उसका भी तरीक़ाकार मुअय्यन किया है कि किस तरह से सिलेक्ट हो। और आप सबको पता है कि अब तक नए प्रोसेस जो हमने 2018 में शुरू किया था उसमें हर पोस्ट जो है वो एडवर्टाइज होती है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसकी शॉर्टलिस्टिंग कमेटी बनती है, उसके बाद सिलेक्शन बोर्ड होता है, सिलेक्शन बोर्ड में 2 आउटसाइड एक्सपर्ट होते हैं उस फील्ड के, और उसके बाद एक पैनल इंटरव्यू करने के बाद इंटरव्यू कमेटी जो है वो कैबिनेट के पास भेजती है। सो इससे हमारे पास 56 चीफ एग्जीक्यूटिव्स आए हैं अभी तक इस प्रोसेस से, और अल्लाह के फजल से उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानीज थे जो हांगकांग में, लंदन में, दुबई में और अमेरिका में, जद्दा में काम कर रहे थे। वो आके उनको कभी ये ख्वाब भी नहीं था कि वो बगैर किसी कनेक्शंस के पाकिस्तान में आ सकेंगे। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब से इंस्टीट्यूशन बनती है, तो ये एक तरीक़ाकार है। दूसरा, मैं स्टेट बैंक पे आता हूँ, मैं ये बाकी आपके सवालात होंगे उसके, तो स्टेट बैंक का जो होगा वो आपको बता दिया है, बट अगर सवालात होंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि टाइम की कमी है, बट आई एम अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चन एंड आंसर ऑन बोथ। थैंक यू इशरत साहब। आई थिंक कि डॉक्टर इशरत ऑब्वियसली काफ़ी कुछ स्टेट बैंक एक्ट के ऊपर कह सकते हैं, लेकिन चूंकि वक्त कम है और हम कि आपकी जानिब से क्वेश्चंस आए हैं तो फ्लोर इज ओपन। जी सर, ये कहिएगा कि ये जो आपने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी और उसके जो सारी काम किए हैं, इसमें अकाउंटेबिलिटी का क्या चीज़ है कि फिर कोई बंदा बात से आ जाए और उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो, कहाँ से काम पहुँच जाए, तो 5 साल में 10 लोग कैसे आए थे। एक और क्वेश्चन लें। आप इसका पहले जवाब दे देना। नहीं एक सवाल का जवाब दे देना, मिक्स हो जाते हैं। नहीं इसका जवाब दे सर पहले, फिर आप लेने देना। आई वांट टू टेक 3-4 क्वेश्चंस एंड देन आंसर। जी हाँ बिल्कुल है। स्टेट बैंक की इकोनॉमी है सर, क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अगर आप ग्रोथ और इन चीज़ों से निकाल देंगे तो कहीं बतौर शहबाज राणा के ये जो 5वां गवर्नर तो नहीं है कि जो पता नहीं किसको जवाब देगा जी। तो ये इकोनॉमी जो है इसके ऊपर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिस्कल कोऑर्डिनेशन बोर्ड का जवाब खत्म कर दिया सर, लेकिन इसकी प्रपोजल है अभी। तो ये फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के दरमियान कोऑर्डिनेशन किस तरह होगी सर? ठीक, दुरुस्त बात। एक और ले लें फिर उनका जवाब देंगे। ये बता दें कि ये जो एग्जेम्पशन स्कीम मौजूदा आप क्या है, कितना उनका वॉल्यूम है, उसको कितना कम करके कहाँ पे ला रहे हैं। और डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि स्टेट बोर्ड एंटरप्राइजेस के 4,15,000 रिसर्च फॉर्मूला इस रिस्ट्रक्चरिंग के बाद उन लोगों का जी ठीक आप भी कर लें। सर ये बता दें कि डॉक्टर साहब बैठने में कि इन्फ्लेशन जो है जी ये जहाँ तक हमारी
अंडरस्टैंडिंग है नॉन फूड और नॉन एनर्जी को देखता है स्टेट और इन्फ्लेशन को देखता है। इन्फ्लेशन जहाँ तक हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू है, तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स किया वो कर सकते हैं, और जब हर 15 दिन बाद एक नोटिफिकेशन एनर्जी या पेट्रोलियम के हवाले से आ जाएगा तो फिर आप उस इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? दूसरा ये लास्ट एक सेकंड क्वेश्चन कि ये जो कॉफी सेक्टर है हमेशा उसी के ऊपर सारा टैक्स का बोझ क्यों लाद दिया जाता है? ये सर्विसेज सेक्टर और आपका रिटेल सेक्टर और आपका जो कमोडिटीज का बिजनेस है उसके ऊपर हम जाते नहीं है। आप फिर बेचारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बेचारा भी दोबारा कुछ खड़ा हो रहा है उसके ऊपर आप फिर कहने की एग्जम्पशन खत्म करके हम उनके ऊपर फिर कॉर्पोरेट टैक्स उनकी एग्जम्पशन खत्म कर देंगे, तो आप इनिशिएटिव तो कोई नहीं हो। सर मेरे दो क्वेश्चन है। पहला एजुकेशन से रिलेटेड है, 3% तक जा चुका है एसपीआई और सीपीआई भी डबल डिजिट बढ़ा है। आप हर वीक में मीटिंग करते हैं नेशनल प्राइस कंट्रोल मॉनिटरिंग कमेटी की, हर दफा डायरेक्शन देते हैं प्रोविंसेस और प्रोविंशियल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, तो ये रस्मी सी मीटिंग होती है, इसका आउटकम क्या आता है? सूबे क्या कर रहे हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? और आईएमएफ के साथ दोबारा प्रोग्राम रिस्टोर होने जा रहा है एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद, तो क्या महंगाई में मजीद इजाफा होगा? इसके लिए वो स्टेप क्या लेंगे कि इन्फ्लेशन कम हो, क्योंकि लोग आम तबका जो है आम आदमी बहुत परेशान है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने पब्लिक सेक्टर जो प्राइसेस की बात की है, तो पिछले 2-2.5 साल में प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम है वो फ्लॉप चला रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो आपके ख्याल में आप माजी में कामयाब प्राइवेटाइजेशन कर चुके हैं, तो ये 2.5 साल में अभी तक कोई कामयाब निष्कारी प्रोग्राम कामयाब नहीं हुआ, तो इस पे कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही है, किस तरह इसको आगे लेके चलेंगे? जी ठीक है काफ़ी हो गए क्वेश्चंस। ठीक है, देखें मैं जो क्वेश्चंस हुए इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, एंड आई विल ट्राई टू आंसर सम ऑफ इट, एंड देन जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के हैं और स्टेट बैंक के ऊपर भी थोड़ा आई वुड लाइक डॉक्टर इशरत साहब टू कम इन, और जो प्राइसेस के ऊपर है उसमें अहमद साहब को आई विल रिक्वेस्ट। देखें जहाँ तक ये इशू है कि स्टेट बैंक के गवर्नर की अकाउंटेबिलिटी या स्टेट बैंक की अकाउंटेबिलिटी की जिम्मेदारी किसकी है, हमेशा पार्लियामेंट की, और अब भी इस लॉ में भी पार्लियामेंट जो है उसको स्टेट बैंक विल बी आंसरेबल। और वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़रा और मोमिनीन मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Ape 奶 खिलौने या डिज्नी